हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर आवर चैप्टर सुश्रुता। हमारा पहला क्वेश्चन है हु वाज सुश्रुता। तो सुश्रुता कौन थे? वो इंडियन आयुर्वेदिक फिजिशियन थे जिन्हें हम जानते हैं फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, फादर ऑफ सर्जरी एंड फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के नाम से। He wrote one of the world's earliest treatises on medicine and surgery known as the Sushruta Samhita. Who was Shalihotra? Shalihotra was a renowned Indian veterinary expert regarded as the father of veterinary sciences. He specialized in animal health and implemented Sushruta's knowledge of surgery for treating animals. What question did Shalihotra ask Sushruta? Shalihotra asked Sushruta about the things required to perform surgery on a horse. How long a period did Shalihotra allow to find the missing things? He was allowed 1 week to find the missing things. How did Sushruta find the missing things? By observing his teacher carefully and thinking about what he did. Who erected the first known veterinary hospitals of the world? Emperor Ashoka erected the first known veterinary hospitals of the world. What were the three things that Sushruta discovered? Three things were: a good veterinarian should have an eagle's eye, a good veterinarian should have a lion's heart, a good veterinarian should have a mother's touch. Explain the meaning of following phrases. Eagle's eye का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है किसी इंसान के जो है अंदर बहुत ही अच्छे जो है ऑब्जर्वेशन वाले स्किल्स हो, यानी जो है आप हर चीज को जो है बहुत गहराई से देखो, हर चीज को नोट करो, हर छोटी छोटी चीज जो है वो आप नोटिस कर पाओ, उसे ईगल्स आई कहते हैं। लायंस हार्ट का मतलब होता है आपके अंदर बहुत ज्यादा करेज और बोल्डनेस हो, शेर की तरह। मदर्स टच का मतलब होता है आप कंपैशन, जेंटलनेस, केयर दिखा सको, माँ की तरह जो है आप दया दिखा सको, आप बिल्कुल उनकी तरह जो है किसी इंसान की केयर कर सको, इंसान या जानवर की, तो उसे मदर्स टच कहते हैं। Narrate the story of Sushruta in your own words. Sushruta, known as the father of Indian medicine and surgery, was an ancient Indian Ayurvedic physician and author of Sushruta Samhita, one of the earliest works on medicine. His teachings greatly influenced Shalihotra, regarded as the father of veterinary sciences, who adapted Sushruta's surgical knowledge for animal care. Once Shalihotra asked Sushruta about the items required for surgery on a horse. After Sushruta listed the items, Shalihotra pointed out that three essential qualities were still missing. Eager to find them, Sushruta observed Shalihotra closely over the next week and discovered these qualities. A veterinarian needs an eagle's eye for detailed observation, a lion's heart for courage, and a mother's touch for compassion. Later, Indian veterinary medicine evolved, incorporating these principles, with Emperor Ashoka establishing veterinary hospitals and prioritizing animal well-being. This rich legacy continues, yet there remains a need for more veterinarians in modern India. Write short notes on the following. Veterinary science in ancient India. Veterinary science developed very early in India based on the principles of Ayurveda. This ancient field included specialized literature on the prevention and treatment of animal diseases. Renowned Indian texts like the Sushruta Samhita and Asvayurveda Siddhanta, attributed to Shalihotra around 2350 BCE, documented methods for treating and caring for animals, especially horses. Other treatises such as Asvachikitsa by Nakul, one of the Pandavas, provided comprehensive guidance on horse care. Indian veterinarians of that time were highly skilled, and veterinary practices have continued through generations. Care of animals in the regime of Emperor Ashoka. Emperor Ashoka is known for pioneering animal welfare measures, including the establishment of the first known veterinary hospital. He implemented practices to ensure the health of animals, providing care for horses, elephants, and cattle in his armies. Ashoka also promoted the cultivation of herbal medicines for both animals and humans throughout his empire and neighboring kingdoms. He emphasized the prevention of diseases through cleanliness, proper feeding, and maintenance of stables, which reflected a compassionate approach towards animals and their well-being. Utilization of animal byproducts in the ancient world.
In ancient India, the utilization of animal byproducts was a common and practical practice. Dairy products were essential, with milk being converted into butter, ghee, curd, and khoya. Sheep were kept for their wool, which was used to produce clothing, while chickens were raised for meat. This approach to animal byproducts reflects a sustainable and respectful use of resources, focusing on maximizing the benefits of domesticated animals in ways that continue to be practiced today. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, उसमें आपको ये टेबल दी गई है जो आपको कंप्लीट करनी है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए? तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके अंदर डिसिप्लिन, क्यूरियोसिटी और हार्ड वर्किंग, ये क्वालिटीज होनी चाहिए। रीजन क्या है? क्योंकि टू इफेक्टिवली लर्न, स्टे मोटिवेटेड एंड सक्सीड एकेडमिकली। अगर आप टीचर हैं तो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? पेशेंस होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? टू इफेक्टिवली टीच एंड इंस्पायर स्टूडेंट्स विद क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप बच्चों को जो है बेहतर क्लैरिटी के साथ चीजें समझा सको। जब आपको पता होगा तभी तो आप उन्हें समझाओगे। एक हाउसवाइफ के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? शी शुड बी मल्टीटास्किंग, पेशेंस होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। रीजन है टू मैनेज हाउस होल्ड टास्क एफिशिएंटली एंड बैलेंस फैमिली नीड्स विद केयर। स्पोर्ट्समैन के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? ही शुड बी डेडिकेटेड, टीम स्पिरिट हो, फिजिकल फिटनेस हो। रीजन क्या है? टू परफॉर्म वेल, सपोर्ट टीम डायनामिक्स एंड एंड्योर फिजिकल चैलेंजेस इन स्पोर्ट्स। आर्टिस्ट के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? क्रिएटिविटी, ऑब्जर्वेशन, परसिवरेंस। रीजंस है टू प्रोड्यूस यूनिक आर्ट, कैप्चर डिटेल्स एंड कंटिन्यूअली इंप्रूव देयर क्राफ्ट। सिंगर के अंदर वॉइस कंट्रोल होना चाहिए, रिदम होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। ऑथर के अंदर इमेजिनेशन होनी चाहिए, राइटिंग स्किल्स होने चाहिए, परसिवरेंस होना चाहिए, ताकि वो अच्छी कहानियां लिख सकें। अंपायर के अंदर फेयरनेस होनी चाहिए, न्याय अच्छे से करे, क्विक डिसीजन मेकिंग, तुरंत डिसीजन करना है, फोकस होना चाहिए, ताकि अनबायस्ड जजमेंट हो। एक्टर के अंदर एक्सप्रेसिवनेस होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अडेप्टेबिलिटी होना चाहिए, ताकि वो डिफरेंट कैरेक्टर्स पोर्ट्रे कर सके। साइंटिस्ट के अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स होने चाहिए, यानी कैलकुलेशन के स्किल्स होने चाहिए, प्रिसिशन होना चाहिए। हर चीज जो है बिल्कुल सटीकता के साथ हो, बिल्कुल सही करना है, सही गलत नहीं, सही करना है। टू एक्सप्लोर, अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज एंड कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स एक्यूरेटली। नेक्स्ट है हमारी ग्रामर की एक्सरसाइज। तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं इन्हें ध्यान से देखिए। केयर, केयरफुली, इक्वल, इक्वली। तो ये जो वर्ड्स हैं इनके एंड में ly ऐड किया गया है और उससे जो है एक नया वर्ड बना है। तो इसे हम कहते हैं सफिक्स। ये जो हमने ly ऐड किया है ये कहलाता है सफिक्स। जब आप वर्ड के एंड में जो है कुछ ऐड करते हो तो उसे हम सफिक्स कहते हैं, जिससे एक नया वर्ड बन जाता है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है इन वर्ड्स में आपको ly ऐड करना है। तो सबसिक्वेंट का हो जाएगा सबसिक्वेंटली, फ्रीक्वेंट का हो जाएगा फ्रीक्वेंटली, वाइज का हो जाएगा वाइजली, इमेंस का हो जाएगा इमेंसली, ब्यूटीफुल का हो जाएगा ब्यूटीफुली। तो ऐसे जो है कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एल है तो यहाँ पे डबल एल आ जाएगा। ओके, तो इन चीजों का हमें ध्यान देना है। जैसे केयर है तो केयर का जो है केयरली नहीं होता है, केयरफुली होता है। तो कुछ वर्ड्स जो हैं वो जब आप उसमें सफिक्स ऐड करते हो तो थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, बट यूजुअली जो है खाली वो जो सफिक्स है वो ऐड होता है। नेक्स्ट है फाइंड टू एग्जांपल्स ईच ऑफ द वर्ड्स मेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग सफिक्सेस। तो नेस के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? हैप्पी का हैप्पीनेस होता है, राइट? हैप्पी में नेस लगा दो तो हैप्पीनेस, काइंड में नेस लगा दो तो काइंडनेस हो जाता है। आर लगा के क्या होता है? टीच में आर लगाया टीचर, रन में आर लगाया रनर। लेट, बुक में अगर आप लेट लगा दो तो बुकलेट हो जाती है। पिग के आगे अगर लेट लगा दिया पिगलेट, जो छोटे पिग्स होते हैं उन्हें पिगलेट कहते हैं। फुल, होप के आगे आपने फुल लगाया होपफुल, केयर के आगे फुल केयरफुल, एजुकेट के आगे आपने शन लगाया तो एजुकेशन, डिवाइड के आगे जो है अगर आप शन लगा रहे हो तो वो डिवीजन हो जाता है। ओके, वो डिवाइडियन नहीं होगा, वो डिवीजन होता है। तो यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज हो रही है। सन के आगे आपने वाई लगा दिया तो सनी हो गया, विंड के आगे वाई लगाया तो विंडी हो गया। तो ऐसे जो है हम इन सफिक्सेस के ये एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं। तो सफिक्सेस बेसिकली
वो वर्ड्स होते हैं जो आप किसी वर्ड के एंड में अगर कुछ लगा रहे हो और उससे एक नया वर्ड बन जा रहा है तो वो कहलाता है सफिक्स। यही अगर आप वर्ड के स्टार्टिंग में कुछ लगा दो तो वो होता है प्रीफिक्स, लेकिन यहाँ पे सफिक्स की बात हो रही है तो हम खाली सफिक्स की करेंगे। Now there is one more thing that we need to look here। जब भी हम जो है suffix लगाते हैं तो जो parts of speech है वो भी change हो जा रहा है। तो यहाँ पे ये subsequent जो word है वो adjective है, हमने ly लगाया तो ये adverb बन गया। यहाँ पे ये adjective है, adverb बन गया। यहाँ पे ये adjective है, adverb बना। तो यहाँ पे जो है ये parts of speech जो है वो चेंज हो जाता है जब आप ly लगाते हो। तो जनरली जब भी आप ly लगा रहे हो वर्ड जो है वो एडवर्ब होता है। ये यूजुअली ऐसा ही होता है, बट कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। बट ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी जो है हम सफिक्स लगाते हैं तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेम क्वेश्चंस बिगिनिंग विद द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ड ऑन द अबव पैसेज। तो अपने पैसेज के हिसाब से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं इन वर्ड्स से स्टार्ट होते हुए। तो हु से हम बना सकते हैं हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ वेटरनरी साइंस। तो किसे हम मानते हैं? हम मानते हैं शालीहोत्रा को। What were the three essential qualities that a veterinarian needed according to Shalihotra? Where से हो जाएगा Where did Emperor Ashoka establish the first known veterinary hospitals? When से हो जाएगा When did Shalihotra ask Sushruta to find the missing qualities? How से हो जाएगा How did Sushruta discover the missing qualities of a good veterinarian? Why is veterinary science not a popular career choice in modern India? Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.